हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 25 जुलाई श्री कृष्ण के प्रति शरणागति के स्तर के अनुसार एक भक्त के हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्फुटित होता है। एक यानी को पत्र 25 जुलाई 1970। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Now, in the first chapter of the Bhagavad Gita, it is the setup. Krishna and Arjuna, according to the order of Krishna and Arjuna, Krishna placed the chariot in between the two soldiers. Two flanks of soldiers, सेनाय उभयोर मध्ये रथ स्थापय में अच्युत. Arjuna was respectful to Krishna. Krishna has accepted to be charioteer, inferior position than Krishna. Krishna is on the chariot, sitting on the throne, and Arjuna is sitting on the throne, and Krishna has taken the inferior position, driving the chariot. So, this is very nice position for devotional service. Those who are not devotee, they aspire to become Krishna. Their aspiration is to merge into the existence of the Supreme, or to become one with Krishna. But in devotional service, it is not the desire of the devotee to become one with Krishna, but sometimes to make Krishna as the order carrier of the devotee. To become one with Krishna, it may be a very great position, but to become the commander of Krishna, that is another thing. That position is greater than to become one with Krishna. So, there are 5 kinds of liberation. Sajujya. The first liberation is supposed to be Sajujya, means to become one with the Supreme. The Mayavad philosopher, monist, they aspire after Sajujya Mukti. But the devotees, Vaishnavas, they do not aspire after Sajujya Mukti. For them, there are other 4 kinds of Mukti. Saruppa, Salukka, Sasti, Sami. And those who are still farther advanced, they do not want any kind of mukti. Neither of these 5 kinds of muktis. Just like Chaitanya Mahaprabhu, he prays, na dhanang, na janang, na sundaring, kavitang va jagadisha kama. This is pure devotional prayer. The devotee does not approach the Supreme for any material gain. Just pure devotion means without any aspiration of any kind of material gain or even spiritual gain. Annavilasita sunnam.
ज्ञान कर्माद अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। Uttama bhakti, first class bhakti. What is that? Annavilasita sunnam. Without any kind of desire than to serve the Lord. And in the Srimad Bhagavatam also it is said, Savai Pungsang Paro Dharma. Paro means transcendental. Beyond this material conception, Krishna or the Absolute, Narayana, that is Paro. Narayana Paro of Bhaktya. Narayana is not anything of this material world. Narayan, Krishna, Vishnu, the Absolute Personality of Godhead, he is not anything of this material world. When we use this word Nirakar, that means his form is not anything of this material world. But he has got his form, that is a transcendental form, Satchidananda Vigraha. Nirakar means he has no such form as we have got this material form. This material form is neither of the three transcendental bliss, Sat, Chit, Ananda. This is Asat, Achit and Niranand. This body, this material body is Asat, Achit and Niranand. Therefore, when in the Vedic literature or an authorized statement we find Nirakar, that means his form does not belong to this Asat, Achit or Niranand. But he has his form. Divyam, Janma Karma means Divyam. Divyam transcendent. And Sripad Shankaracharya also, who especially preached impersonalism, he also admits the Narayana Para of Bhaktat. Narayana, the form of Narayana, is beyond the range of this Bhakta. Bhakta, and this world is creation of Bhaktyat Annasambhava. This world is creation of this Bhakta. And beyond this Bhakta, there is another nature, that is spiritual nature. That is explained in the Bhagavad Gita. Parastasmatu bhava anya bhakta bhaktyat sanatan. So, this situation, Krishna is advising, Arjuna advising, Ratha Sthapayame Achyuta. Achyuta, Krishna is not Chuta. Krishna is Achyuta. Chuta means those who are fallen in the material world. They are Chuta. We are fallen in the material world. Therefore, we have accepted this material body. Ichha desha samuthena sarge janti parantapa. Ichha. Ichha means desire. And desha means envy, enviousness. Ichha desha samuthena. When we become envious of Krishna and we want to enjoy this material world, then we come to this material creation.
इच्छा देश समुत्थेन सर्गे जानति परम. So, any one of us who is in this material world, having a material body, beginning from Brahma down to the ant, a small ant, any one of them, in the Brahma Samhita it is said that Justindra Gopa Mathavendra Maho Sakarma Bandhana Rupa Phalabhajana Matanoti. Indra Gopa, there is an insect which is called in Sanskrit language as Indra Gopa. It is micro. You cannot see with this naked eyes. So this microbe is called Indra, and there is another Indra, the king of him. So the Brahma Samhita is just to Indra Gopa and Mahendra, this king of heaven. Beginning from this Indra Gopa up to the king of heaven, everyone is subjected to enjoy or suffer the resultant action of his karma. By karma, by the resultant action of karma, one has become the king of heaven, and by similarly this by karma, resultant action of karma, one has become the microbe insect. This is the material world. There are 8,400,000 types or forms of this material body, and we are wandering sarvagata in different planets, in different forms. This is material world. हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 55। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त सिद्ध प्रज्ञ कहा जाता है। पिछले श्लोक में 54 नंबर श्लोक में हमने देखा अर्जुन 4 प्रश्न पूछते हैं और इन 4 प्रश्नों का उत्तर भगवान 55 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक देंगे। पहले प्रश्न का उत्तर भगवान 55 में अभी दे रहे हैं। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। क्या बोल रहे? प्रजाहाति मतलब छोड़ दो। क्या छोड़ दूं भगवान? आप बोल रहे हैं छोड़ दो, क्या छोड़ू? प्रजाहाति यदा कामान। कामान मतलब इच्छाएं। इच्छाओं को छोड़ दो अर्जुन, इच्छा को छोड़ दो। कौन सी इच्छा को छोड़ो? बताइए, जल्दी टिक कर लेता हूं, लिख लेता हूं। कौन सी इच्छा छोड़ो? सर्वान। अरे सभी इच्छाओं को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं सभी इच्छाओं को छोड़ दो। तो प्रभु फिर कैसे चलेगा? सब इच्छा छोड़ दी, आप तो कहते हो कि भक्ति की इच्छा करो। हाँ, तो भक्ति की इच्छा नहीं छोड़ने बोल रहे हैं भगवान। यहाँ क्या बोल रहे हैं? प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अर्जुन, हे पार्थ, जो मन से उत्पन्न हुई इच्छाएं हैं उन सब इच्छाओं को छोड़ दो, क्योंकि मन दूषित है, मलिन हो चुका है, गंदा हो चुका है। तो उसमें से जो इच्छा होगी वो भी गंदी निकलेगी, मलिन निकलेगी, दूषित निकलेगी, और वो इच्छा हमको सिर्फ बंधन में फंसाएगी। इस भौतिक संसार में हमको
अटका के रखेगा। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो नहीं लड़ने की इच्छा है ना अर्जुन, ये तुम्हारे मन से उत्पन्न हुई है, इसको छोड़ दो। ये जो तुमने मुझे अलग अलग कारण बताया, हालांकि भगवान ने सब तर्कों को, पांचों तर्कों को काट दिया। फिर अर्जुन पूछते नहीं बताइए, स्थित प्रज्ञ जो आपका शुद्ध भक्त है वो कैसा होता है? तो उसके मन में कोई इच्छा नहीं होती, अपने मन से इच्छा नहीं करता है। अगर भगवान चाहते हैं अर्जुन तुम लड़ो और भीष्म को मार दो तो मार दिया। अगर भगवान बोल रहे हैं कि तुम वनवास चले जाओ, वनवास चले। अगर भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन, भगवान नहीं अर्जुन को बोला, अर्जुन ये वनवास का समय जो है इसको व्यर्थ में मत जाने दो, जाओ और पशुपात अस्त्र ये लेके आओ शिव जी से, जाओ अपने पिता इंद्र के पास स्वर्ग में, वहां से बहुत सारे देवी अस्त्र प्राप्त करके आओ। हालांकि अर्जुन को युद्ध में कुछ चलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो जो भगवान का भक्त होता है ना, वो क्या करता है? अपने मन की इच्छा नहीं करता। जो भगवान और भगवान के प्रतिनिधि गुरु कह रहे हैं वो दोनों को सुन के बस करता रहता है। ये कौन कर सकता है? जो समझ जाए, जिसकी बुद्धि में ये बात बैठ जाए। बुद्धि भी दूषित है। भक्ति करके, भगवत गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, भगवान की सेवा करके बुद्धि को शुद्ध करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं। फिर बुद्धि में बात बैठ जाती है कि कृष्ण मेरे परम हितैषी हैं, और कृष्ण कह रहे हैं सुहृद सर्वभूतानाम, ये सारे जीव जो हैं अर्जुन वो सुहृद हैं, मतलब वो मेरे हृदय के बहुत पास रहते हैं। और देखिए, कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति हो, आपका साथ हर जगह नहीं दे सकता। ऐसा कोई संबंध नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। कुछ लोग भले बोलेंगे मैं हमेशा आपके साथ हूं, लेकिन नहीं हो सकते। इस जीवन में भी हमारा साथ नहीं दे सकते, तो ये तो शरीर के छूटने के बाद यानी मृत्यु के बाद कौन हमारा साथ देगा? लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ है। हम मनुष्य शरीर में हैं, भगवान हमारे साथ है। हमको गाय का शरीर मिलेगा, भगवान हमारे साथ है। सांप का शरीर मिलेगा, भगवान हमारे साथ है। बंदर का, गधे का, घोड़े का, वायरस का, वृक्ष का, पौधे का, जो शरीर मिलेगा, देवता का, असुर का, राक्षस का, भगवान हमारे साथ है। भगवान है सुहृद। तो जब ये समझ जाएंगे कि भगवान हमारे परम हितैषी हैं और भगवान ने प्रतिनिधि को भेजा है अपने हम तक उनका संदेश पहुंचाने के लिए और हमको सुधारने के लिए, तो वो गुरु हैं। प्रामाणिक गुरु, हर गुरु नहीं, प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। भगवान से वो स्टैम्प करके लाना चाहिए, ऑथोराइज्ड एजेंट होना चाहिए ना भगवान का। ऐसा थोड़ी कल मैं कह दूंगा कि मैं आपके घर पे आ जाऊंगा, मैं कहूंगा मैं प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि हूं, आपके घर पे आया हूं, हमारा स्वागत करो, हमें ये फैसिलिटी दो। आप थोड़ी मानोगे। आप बोलोगे दिखाओ आईडी कार्ड। मैं बोलूंगा मैं सीबीआई से हूं या मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूं, रेड लगाना, आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड होता है ना, स्टैंप लगा होता है। तो ऐसे ही जो स्टैंप लगे हुए गुरु होते हैं, भगवान ने स्टैंपिंग किया है, उसको प्रामाणिक बोलते हैं, और वो हमारे परम हितैषी। एक छोटा बच्चा होता है, क्यों अपने माँ बाप को पालन करता है? क्यों सुनता है अपने माँ बाप की और दूसरों की नहीं सुनेगा? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पिता, मेरी माता जो है ये मेरे भले के लिए कर रहे हैं। तो जब हमको पता पड़ जाएगा कि गुरु और कृष्ण हमारे भले के लिए कर रहे हैं, तो जो वो कहेंगे उसको करने से क्या होगा? हमारा भला होगा। भगवान का एक नाम है हरि। हरि मतलब जो सारी अशुभ चीजों को हमारे जीवन से हटा देते हैं। लेकिन हमको सुनना पड़ेगा। जैसे हम वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलता है कि आप ये मत खाइए, ये खाइए, दो चीजें मत खाना, ये खाना, ये दो, और तीसरा दवाई, मतलब डाइट और मेडिसिन। और डाइट में ये खाना है, ये नहीं खाना है, और ये मेडिसिन लेनी है। उसमें क्यों हम पालन करते हैं डॉक्टर का? क्योंकि हमको पता है कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिक भर गया है ना, जो जहर भर गया है, उसको निकालने के लिए डॉक्टर ये कर रहा है। हम डॉक्टर का मानते हैं। हम किसी कोर्ट केस में फंस जाते हैं तो वकील हायर करते हैं,
वकील जो बोलता है हम करते हैं। क्यों? हमको पता है हमको निकालेगा। सक्सेस होगा कि नहीं पता नहीं, डॉक्टर सक्सेस होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन भगवान तो 100% सक्सेस होंगे ना। भगवान के तो फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। तो जो भगवान कह रहे हैं हमारे लिए वो हमें करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए। इसी को भगवान बोल रहे हैं कि जो मन में उत्पन्न हुई तुम्हारी इच्छाएं हैं अर्जुन, उसको छोड़ दो, तुम वही करो जो मैं कहता हूं। तो हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? मतलब हमारी इच्छा होनी चाहिए भगवान की जो इच्छा है या भगवान की वाणी है उसको पूरा करने के लिए हमारी चेष्टा होनी चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज, वे हमेशा कहते कि कृष्ण अर्थ है अखिल चेष्टा। जितनी भी आप मेहनत करो, जितना भी आप बुद्धि लगाओ, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, वो कृष्ण की सेवा के लिए लगाओ। तब भगवान हरि सब अशुभ चीजों को हर लेंगे और सिर्फ शुभ आपके जीवन में रहेगा। तो भगवान बोल रहे हैं क्या कि ये सब छोड़ दो और फोकस करो किस पे? जो मैं कह रहा हूं। उसमें क्या मिलेगा? उसमें हमने बताया कि सिर्फ शुभ होगा आपके संसार में। लेकिन अभी ट्रांजिशन फेज में ना, जैसे डॉक्टर के पास जब जाते हैं, कई बार डॉक्टर बोलता है अरे प्रभु जी, बॉडी को इतना डैमेज करके लाते हैं पेशेंट, तो उसको ठीक करने में टाइम तो लगेगा ना। अभी हमने जैसा बचपन में हमको बॉडी मिलता है, हम क्या करते हैं? अगला 20, 25, 30 साल तक उसको पूरा डैमेज कर देते हैं। कुछ भी खाते हैं, हमारा सोने का, उठने का, खाने का कुछ नियम नहीं, सब कुछ भी करते हैं। अब बॉडी डैमेज हो गई। अब क्या हो रहा है? जैसे अगर आप पेट्रोल वाली कार में डीजल डाल देंगे या मिट्टी का तेल डाल देंगे या पानी डाल के चलाएंगे तो इंजन का क्या होगा? तो ऐसे हमारी बॉडी हो गई। तो डॉक्टर को पूरा क्लीन करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो वो ट्रांजिशन फेज है ना। ऐसे ही हम जब भक्ति प्रारंभ करते हैं, भगवान जो कह रहे हैं वो सुनते हैं, भगवान के प्रतिनिधियों की सुनते हैं, तो फिर हम धीरे 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 ट्रांजिशन फेज होता है। ऐसा नहीं कि आज मैं भगवान का वाणी भगवद गीता पढ़ा और वो कर दिया तो सब ठीक हो गया। नहीं, थोड़ा ट्रांजिशन फेज तो रहेगा ना। हमारे प्रारब्ध जो कर्म है वो तो हमें लेने पड़ेंगे। तो वो थोड़ा ट्रांजिशन को सहते हुए और आगे बढ़िए। इसको सहने को भगवान ने हमें पहले ही बता दिया। उसको आगे बढ़िए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे। ये भगवान अर्जुन को यहां पे बता रहे हैं। तो इच्छाएं सब नहीं छोड़नी है। कौन सी इच्छाएं छोड़नी है? जो मन की इच्छाएं है, क्योंकि मन दूषित है। लेकिन वो इच्छाएं जो भगवान की इच्छा है, जैसे आपकी इच्छा हो रही है कि मैं भगवद गीता पढ़ूं और समझूं और दूसरों को पढ़ाऊं, तो बहुत अच्छी इच्छा है। हाँ, आपकी इच्छा है कि हमारे एरिया में नगर संकीर्तन हो, हम इस्कॉन मंदिर से भक्तों को बुलाएंगे और अपने एरिया में, अपने इस कॉलोनी में संकीर्तन कराएंगे। बहुत अच्छी इच्छा है, क्योंकि ये तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। अगर आपकी इच्छा है कि बहुत आज अच्छा, आज उत्सव है, तो बड़ा अच्छा भगवान के लिए भोग बना के भगवान को लगाएंगे। और रामनवमी आ रही है तो भगवान के लिए हम अच्छा सुंदर ड्रेस बनाएंगे। तो ये सारी जो इच्छाएं हैं ये आपको आगे बढ़ाएंगे भक्ति में। और मन की इच्छाएं हैं, चलो मैं भोग करूंगा या मैं नशा करूंगा या मैं संसार को जो है संसार का पूरा स्वामी मैं बनूंगा, ये इच्छाएं आपके मन की होती है। ये इच्छा हमको और फंसाते जाती है। अभी जो इच्छाएं भगवान छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, आर्टिफिशियली नहीं छोड़ सकते। जैसे कोई पेशेंट है, उसको आप छोड़ने के लिए बोला, नहीं छोड़ेंगे। तो अभी हमको बोलेंगे मन की इच्छाएं छोड़ दो, हम इमीडिएटली नहीं छोड़ेंगे। तो हमको क्या करना है? जो भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे हम भक्ति करते जाएंगे तो क्या होगा? हमारी चेतना, हमारा मन, हमारा बुद्धि, ये सब शुद्ध होगा। और ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, फिर जो मन से उत्पन्न इच्छाएं, दूषित मन से, अपने आप छूटती चली जाएंगी, अपने आप छूट जाएंगी। इनको छोड़ने का प्रयास करेंगे, लोग करते हैं, और ऋषि योगी इन लोग करते हैं इसको छोड़ने का, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं जोड़ते तो खाली रह नहीं सकते। तो इसीलिए जाते तो हैं तपस्या करने, फिर वापस आ जाते हैं, फिर हॉस्पिटल खोलते हैं, कोई पॉलिटिक्स में जाता है, कोई स्कूल खोलता है। वो देश तो फिर उनका खत्म हो जाता है। वो गए किस लिए थे? तपस्या करने। इसीलिए हम तो हिमालय नहीं जा सकते। भगवान वो बोल भी नहीं रहे। अर्जुन तो जानना चाहता था। अर्जुन को बोले तुम युद्ध करो।
आप अपने घर में रहिए, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपनी घर गृहस्थी चलाते हुए भगवान की भक्ति को लेके आइए। ये जो बाहर का चीज है ना, जो दूषित चीज है, वो अपने आप साफ हो जाएगा। आप अमृत लेके आइए, जहर अपने आप जीवन से हमारे निकल जाएगा। हरे कृष्ण।